नामत व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। न तुझसे गरज न तेरी सूरत से गरज, हम तो मुसव्विर का कलम देखते हैं। टुडे माय लेक्चर labor law. I describe you the labor right. What are the right of labor? Labor law labor right is a worker's right or a group of legal and a human right relating the right to labor relations between workers and the employment classified the quantified the national and the international labor employment labor one of the most central employment law one of the most central of the right of freedom of associations, otherwise known as the right on organizations. Today I describe you one of the most prominent and the right of the freedom of the organizations, otherwise now as the right to organize workers, organize trade unions, exercise the right of collective bargaining to improve working conditions. I describe you through history. Workers claim some sort of right and a turn to pursue their intent during the Middle Ages. Peasant revenue in England sent demand for the better wages of workers' conditions. People are born and equal, saying when the Adam lived, and even Spain, who was the gentleman laborers often speak and traditional right for the intense. This is the patience of the workers, organizations, factories, laborers, international labor law, the most recent right advocacy as a focus on the particular explorations, the needs of workers and women, increasing. The international labor law organizations was formed in 1990 as a part of League of Nations, protect worker right, incorporated to the United Nations. The units itself become workers the incorporating the so and the article of the Union National Declaration of Human Rights, which is the basis of international convented economical, social, and a cultural right. Article 68 the read. Article 23 everyone has the right to work to free choice of employment to choice as a favorable conditions work and the protection against unemployment. Everyone without and discriminations has the right equal pay for equal work. You know about everyone and without any discriminations and the right and the equal work, the just and favorable remunerations, ensuring and himself the humanity, dignity, supplemented of, if necessary,
by one means of social protection. Everyone has the right to form and join trade unions for the protection of his or interested. आज and the describe then the organization duties and the power of labor code, wages and commissions. Duties of labor code, यहाँ पर लेबर कोर्ट अदालत मेहनत उजरत कमीशन को तंजीम फ़राइज़ इख्तियारात कैसे फ़राइज़ अंजाम देते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर आप देखें तो यहाँ सेक्शन 44 लेबर लॉ में इसके तहत इख्तियारात हासिल हैं। चीफ जस्टिस अदालत आलिया के मशरे से जिस कदर मुनासिब समझे लेबर कोर्ट्स कायम करे, उनको मुश्तहर करे, सरकारी गज़ट में उनकी 2 हदें समात का तयन करे, जो ऑर्डिनेंस साज़ा के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। ऐसी अदालत एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर मुश्तमिल होगी जो कि कम से कम एडिशनल सेशन जज के अहदे पर हो। ऐसे जज का तकर्रर सूबाई हुकूमत मुतल्लिका अदालत आलिया के चीफ जस्टिस से मशवरा के बाद करेगी। द ड्यूटीज़ ऑफ लेबर कोर्ट, तो यहाँ पे यानी अदालत के यानी कि जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत यानी कि जो फ़राइज़ हैं, सनती तनाज़ात की समाअत और फ़ैसला होता है, किसी मामले की तहकीक होती है, जराइम की समाअत होती है, दीगर फ़राइज़ उनका तयन किया जाता है। द पावर ऑफ लेबर कोर्ट में जराइम की समाअत के दौरान ज़ाब्ता फ़ौजदारी पर अमल कर सकती है। तनाज़ात के तस्फ़िये के साथ यहाँ पर ज़ाब्ता दीवानी का भी ज़िक्र किया गया, उसके इख्तियारात भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ किसी शख्स को हाज़िर होने पेश करने के लिए भी कह सकती है, यानी समन वगैरह भी जारी कर सकती है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस साज़ा में किसी खिलाफवर्जी की समाअत करते हुए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। यानी लेबर कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट फ़ीस नहीं ना है, तो अगर किसी तनाज़ा में कोई हुक्म सादिर करेगी तो यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊँ, यानी फ़ेल फ़रीक़ैन अदालत को इस बारे में आगाह और मुतमिन करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके दरमियान मामला या तनाज़ा खुशी असलूबी से तय पाया जा चुका है। अदालत इस अमर की इजाज़त देती है। यहाँ पर इस मुतल्लिका के मुतालिक बारे में बता रहा हूँ, तनाज़े के बारे में, यानी ये दरख्वास्त वापस ले ले, यानी लेबर कोर्ट ले फ़ैसले की समाअत, यानी उसकी अहकामात हैं, कोई नौयत की कती होगी, दूसरी अदालत यानी अथॉरिटी के सामने ये इसको चैलेंज ना हो सके। तो इस में एक सेक्शन के यानी 48 में बताया कि यानी जो मुतासरा फरीक यानी 29 दिन के अंदर अंदर अदालत आलिया के रूबरू उसको पेश करेंगे, यानी इसका फ़ैसला यानी उसका हतमी फ़ैसला या कतई फ़ैसला होगा। लेबर कोर्ट्स के लवाजमात हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर द जजमेंट के बारे में भी, यानी लेबर्स कोर्ट का कोई फ़ैसला जो दर्ज ज़िल समात है, यानी मिसाल 1 तहरीरी भी होगा, खुली अदालत में सुनाया जाएगा। दो नकुल सूबाई हुकूमत को भिजवाई जाएंगी। यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट को उसकी नकल भिजवाई जाएगी। 2 नकल जो होगी उसकी, जो 2 फ़ोटो कापी होगी वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाई जाएंगी। यानी अगर फ़रीक सूबाई हुकूमत यानी अगर फ़रीक यानी के सफाई यानी के हुकूमत हो, तो यहाँ पर प्रोसीजर ये है कि लेबर कोड के अंदर सेक्शन 45 पे यानी सनती ताल्लुकात
आर्डीनेंस 2002 में तकरीबन ये आया 2002 के अंदर। उसके तहत यानी कि वो ताबे किसी सनती तनाज़ात यानी किसी फ़ैसले को तस्फिया करते हुए एक अदालती यानी दीवानी शुमार होगी, उसके पास अदालत दीवानी के इख्तियारात होंगे। इस सेक्शन के तहत एक लेबर अदालत यानी मंदरजा झिल इख्तियारात समात उसके जानी के जबकि यानी सनती तनाज़ात समात करेंगे। किसी शख्स को हाज़िर होने का हुक्म भी दे सकती है और हलफ पर उसका बयान भी ले सकती है। ऐसा मवाद या दस्तावेज़ात जो मुतल्लका हों पेश करने का हुक्म सादिर कर सकती है। गवाहान का बयान लेने या दस्तावेज़ात का यानी कि उसका मामला भी कर सकती है। इस सेक्शन के तहत अदालत में फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। मुकदमा लेबर यानी समात करी उसे मजिस्ट्रेट यानी सेक्शन अव्वल के तहत इख्तियारात समात है। लेबर अदालत के रूबरू दरख्वास्त पर कोई कोर्ट फीस आयद नहीं होगी। लेबर कोर्ट के रूबरू किसी कार्रवाई को मुनासिब वजूहात की बिना पर दरख्वास्त वापस ली जाएगी। यहाँ पर बताया है कि लेबर कोर्ट का फ़ैसला तहरीरी होगा। 1 माह के अंदर सरकारी गज़ट शामिल किया जाएगा। यानी वेजिस ऑफ कमीशन है कि यानी उजरतों की शरह की 3 कैरेज की समात है। यानी कि इस ज़िम्रे 38 आर्डीनेंस के अंदर ये 1979 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। उसके तहत यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियारात हासिल हैं, वो जब भी ज़रूरी समझे और मुनासिब ख्याल करेगी यानी सरकारी गज़ट यानी कि मुश्तहर करने का यानी कि हुक्म यानी कि यहाँ पर यानी कि समात कर यानी कि वो समात करेगी। तो यानी उजरत कमीशन का क़याम अमल में लाई जा सकती है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस में बताया है इस सेक्शन के अंदर इस ऑर्डिनेंस के तहत यानी वफाकी तसीस का भी करदा इख्तियार हासिल है, जिसके हवाले से कमीशन का अहम नुकात में आपको बता रहा हूँ कि कमीशन 2 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। 2 मेंबरान होते हैं यानी कमीशन का चेयरमैन वफाकी हुकूमत नामज़द करती है उस शख्स को जो अदालत आलियत का जज हो यानी जज रह चुका हो, यानी एक्स जज को भी रखा जा सकता है, रिटायर जज को भी यहाँ तायन कर सकती है। कमीशन अपनी तश्कील से 6 माह के अंदर अंदर फ़ैसला सुनाएगी, जो कमेटी तश्कील देगी। यानी फ़ैसला अक्सर दोनों से होगा। इख्तलाफ की सूरत में चेयरमैन मज़ीद फ़ैसला कुन राय दे सकता है। तो यहाँ पर कमीशन में कोई खामी यानी कमीशन के फ़ैसले को अलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, मैं उन दोस्तों को बताना जा रहा हूँ जो जूनियर्स वकला हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और एज़ आ लॉयर्स लेबर कोर्ट के भी मामलात का पता होना चाहिए। यानी कि जो इख्तियारात होते हैं, पावर्स होते हैं, उन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो किसी बैंक के या दूसरे का यानी किसी बंक या के दूसरी कारकुनों से मुतल्लिक़ शरह अजरत या शराइत मुलाजमत तयन करे जिसका वफाकी हुकूमत बज़रिया नोटिफिकेशन इज़हार करेगी। यहाँ सेक्शन 38 सब बी के अंदर बताया है कि कारकुनों की इजरत यानी शरह मुकर्रर है, उनकी मुलाजमत को दीगर शराइत का तयन करना होगा। तो यहाँ पर बताया है इस सेक्शन के अंदर तहत यानी बैंकों के कारीगरों का कारकुनों की शरह अजरत का शराइत का मुलाजमत का तयन भी है। सेक्शन 38 ए के तहत अबूरी शरह का तयन है। सेक्शन 38 बी के तहत इख्तियार अज़ाफ़ी इख्तियारात हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सेक्शन 55 के तहत काबिल सज़ा जुर्म की समात अगर जुर्म का ताल्लुक़ इजरत कमीशन के फ़ैसले अमल दरामद नाकामी से हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा दीगर अदालतों से या खुद या किसी दरख्वास्त या किसी कोई भी मामला वापस लेना उससे अज़ खुद लेना पड़ता है, यानी अज़ खुद उसके हवाले करना पड़ता है। यानी कि अदालत में
अदालत के कमीशन का फैसला, कमीशन का अवार्ड तस्वर होगा। जनी उजरत कमीशन का उसका जो कमीशन का मामला होगा वो अवार्ड तस्वर होगा। फैसला वफाकी हुकूमत को रवाना किया जाएगा, जो 1 माह के अंदर सरकारी गज़ट में शाया कर दिया जाएगा। फैसला अमल दरामद करने के लिए तारीख तय की जाएगी, यानी उस मौजूद ना होने की सूरत में यहाँ बताया है कि उनके इख्तियारात सूबाई हुकूमत, यानी सूरत में फ़ैसले की तारीख से होगा। 3 साल तक ये कमीशन कि किसी नए फ़ैसले तक मौसर रहेगा। तमाम अजरत कमीशन के फ़ैसले पर अमल करने के पाबंद हैं। दरख्वास्त अपील या वापस ली जाए तो वहाँ पर उसका फ़ैसला यानी यूनेस्को समात को देखे किया जाएगा। जराइम की समात ऐसे इख्तियारात जो इस आर्डीनेंस के तहत बताए हैं कि उसकी जराइम हासिल शुदा हैं, तकरीबन कमीशन को तकरीबन टाइम से यानी कि इख्तियारात फ़र्ज यानी कि तयन शुरा इख्तियारात मुलाजमत हासिल होंगे, जो आम तौर पर सनती तनाज़ात की खातिर कमीशन को हासिल होते हैं। जो इस सेक्शन आर्डीनेंस के अंदर 2002 में ये अजरत कमीशन का ज़िक्र नहीं है। हुकूमत को सेक्शन 44 के तहत इख्तियारात हासिल हैं लेबर कोर्ट के अंदर। जिस कदर चाहे वो अदालत है मेहनत लेबर कोर्ट्स कायम करे, उनकी इलाकाई हदूद वगैरह से इख्तियारात समात का तयन तशरीह करें। अदालत में प्रेजाइडिंग अफसर भी मुश्तमिल हो सकता है। उजरत कमीशन का फ़ैसला अवार्ड की हैसियत रखता है, जो वफाकी हुकूमत को भेजा जाए। इस अवार्ड 3 साल तक कमीशन के नए अवार्ड तक मौसर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम फिर हाजिर होंगे। अब तक की इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।